I would now request Shri Pramod Boro, Chief Executive Member, PTC, to kindly give the inaugural speech. Thank you. First of all, I welcome all dignitaries and participants and invited guests in our second trophy tour program of Durand Cup in Bodoland. Today we have our chief guest, Srimati Nandita Garlosa, Cabinet Minister of Assam, Sports, Youth Affairs, Power Corporation and Indigenous and Tribal Faith. We have U.G. Brahma, Cabinet Minister of Assam. We have Jayanta Basumatarie, Member of Parliament, Lok Sabha from Kokrajhar. We have Rangara Narjari, Member of Rajya Sabha from Assam. We have General Srikanji, Chief of Eastern Command. We have Major General Bishal Singhji. We have Brigadier Aksayji, and also our Speaker of Bodoland Territorial Council, my colleague EMs, MLS, MCLS, our Vice Chancellor of Bodoland University, Registered of Bodoland University, and officers of Sports Department, and our youths coming from different youth clubs, NCC, and media friends also. I welcome all of you once again, and today it is once again very happy moment for people of Bodoland for having this opportunity to host 133rd Durand Cup, which is second for us, but 133rd Durand Cup in India. And Kokrajhar, I don't know how it happened in last year, but since it started last year, we are having this opportunity once again, and I hope for future also. Durand Cup giving us another opportunity to build an peaceful atmosphere and brotherhood feelings among the people. As we know that it is one of the oldest football tournament in the country, which started in 1888. Now it is most popular not in our country only, it is entire world. The Durand Cup is known to everybody. So our young friends who are very enthusiastic and very interested in playing, they will be encouraged after having being part of this Durand Cup football tournament in Bodoland. Today I am as a chief of Bodoland, I felt honored to have this opportunity in Bodoland. We had no hope like this that we will able to do this in few years back. If you think Bodoland, running with hopeless situation, but with the approach of many institutions, many organizations from different part of the country, now a new atmosphere built in Bodoland, where different organizations, different institutions coming together to rebuild our peaceful atmosphere, rebuild our connectivity, rebuild our communication to each other, and hope and aspirations of the people are grown again. So today, our Prime Minister Narendra Modi ji has encouraged the people of the country. Here is a quote. He said, "I don't look at sports as something which merely tones up the body. I look at it as a tool of education that stimulates the mind and brings in a culture of discipline." Narendra Modi ji said this. So today, the Bodoland people are become very, attached with Durand Cup,
since last year and this year also, and we are along with our friends. They are playing in a different events, different sports. We are very eagerly waiting to welcome 133rd Durand Cup here. Since last years, we have started many sports again. We are building our infrastructure as much as we can. यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फिर भी हमने ये कोशिश किए थे, लेकिन डुरंड आने के बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया है। असम के चीफ मिनिस्टर जी, आज मंत्री जी है यहाँ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का। असम में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक नया एक योजना, नया एक पॉलिसी लिए है। हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और बोडोलैंड में भी हम लोग ने कोशिश किए। असम से जितना सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितना सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ काउंसिल का भी थोड़ा सा सपोर्ट या पॉलिसी है कि स्पोर्ट्स को हम लोग को आगे लेके जाना है। तो इसीलिए हमने कोशिश किया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमने कुछ ही दिनों से इंडियन आर्मी के सपोर्ट से, हमारे लोगों के सपोर्ट से एक फीफा स्टैंडर्ड, फीफा अप्रूव फुटबॉल स्टेडियम बनाने का एक काम हमारा संपूर्ण हो गया है लगभग। तो ये बहुत बड़ा काम आज हमारे बोडोलैंड में हो गया है। इसके साथ ही 180 करोड़ का जो 2020 में हम लोग का एकॉर्ड हुआ था, उस एकॉर्ड का एक क्लोज है जहां एक एकेडमी बनाना है। हमारे ही एक जिला उदालगुरी में 120 करोड़ का एक स्पोर्ट्स एकेडमी होने जा रहा है, जो ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की स्टेज में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो वो मिल जाने के बाद हमारे यहाँ एक नया एकेडमी बन जाएंगे। कुकराझार में भी निश्चित से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 110 करोड़ का एक फुटबॉल स्टेडियम बनाने का एक जो प्रपोजल है उसको अप्रूव कर दिया है। वो कुछ ही दिनों में ये भी काम कुकराझार में शुरू होगा। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुए थे बीच में, इसीलिए रुकावट आए थे, लेकिन आज कुछ ही दिनों में मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया और ये बात भी आगे बढ़ गया है। इसीलिए कोकराझार में हमारा बहुत एक अच्छा स्टेडियम होने जा रहा है। बोडोलैंड का एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे वीर शिलागांग, उस रिवोल्यूशनरी लीडर के नाम पे हम लोग हमारे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्टेडियम हम लोग बना रहे हैं। लास्ट ईयर 6 हमने बनाया, इस साल और 6 हम लोग बनाएंगे, 6 बनाएंगे। 5 करोड़ का एक स्टेडियम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग बना रहे हैं। इस साल हम लोग ने 2 एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारे विनोद ब्रह्मो रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी बोल के 2 फुटबॉल एकेडमी, एक कुकराझार में, एक उदालगुरी में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एंड टुडे आई मस्ट थैंक कि हमारा जो जनरल मनोज पांडे जी यहाँ आए थे लास्ट डुरंड कप में रक्षा मंत्री जी के साथ, और उस समय पे हमने कुछ रिक्वेस्ट रखे थे। आर्मी और बोडोलैंड के लोगों से बहुत पुराना नाता है। एक समय हुआ करता था, हमारे सुरक्षा के लिए आर्मी डे एंड नाइट यहाँ काम करते थे। यहाँ शांति बनाए रखने के लिए, यहाँ जो भी कुछ वायलेंस हुए थे, ये सब एक परिस्थिति को बदलने के लिए आर्मी बहुत सेक्रीफाइस किए थे, बहुत काम किए थे। और अभी एक ऐसा समय आ गया जहां आर्मी हथियार लेके नहीं आ रहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट करने आ रहे हैं। जहां आर्मी अभी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को अभी देश के जो है सुरक्षा बल में या हमारे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए जो एक नया योजना आए थे भारत सरकार की अग्निवीर, इसमें भर्ती करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग को एनसीसी यूनिट भी मिल गया कोकराझार में, बहुत कम दिन में एक एनसीसी यूनिट मिल गया। अभी हमारे हर स्कूल कॉलेज में एनसीसी शुरू हो जाएगा, और अभी उम्मीद है कि एक सैनिक स्कूल का, हर स्टेट में एक ही सैनिक स्कूल है, हमारे असम में भी एक है। लेकिन हम चाहते हैं बोडोलैंड के लोग, हमारा जो पेट्रियोटिक जो एक विचार है, सोच है, वो बहुत ज़्यादा है। किसी का कम मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा सा
हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मौका दिया जाए कि देश की सुरक्षा के लिए, देश सेवा की काम करने के लिए, इसीलिए हमने एक सैनिक स्कूल का मांग रखा है। मैं उम्मीद रखूंगा कि हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से भी रक्षा मंत्री जी को, भारत सरकार को थोड़ा सा बोलेंगे कि कोकराझार में एक सैनिक स्कूल होना चाहिए। मैं आज ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ इंडियन आर्मी को। और लास्ट ईयर रक्षा मंत्री जी आए हैं, इस साल भी हम लोग उम्मीद लेके बैठे हैं, हमारा नया आर्मी चीफ आ गया है ना, और इसके साथ ही रक्षा मंत्री जी भी आएंगे। और उसके साथ ही हम लोग इस बार थोड़ा सा आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा राज्यसभा की MP साहब के थ्रू हमारे राष्ट्रपति जी को भी हमने हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रखा कि या तो बिगिनिंग में या तो अंत में कोकराझार में आके ये डूरन कप का जो एक अच्छा माहौल है, इसको और शोभा बढ़ाने के लिए हमने राष्ट्रपति जी को भी इस बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रही हैं यहाँ आने के लिए। मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि राष्ट्रपति को यहाँ आने का एक अच्छा परिस्थिति हो, एक अच्छा माहौल हो, उसके लिए मैं ये ईश्वर को प्रार्थना करूंगा। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ 30 जुलाई से यहाँ जो डूरन कप होने जा रहा है, आप सब लोग आइए। हमारे फुटबॉल एकेडमी के फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ के यहाँ ऑफिसर्स है, मेंबर्स है, सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी यहाँ हिस्सा बनिए। लास्ट ईयर जैसे आप लोग हिस्सा बने थे, और इस बार भी ये डूरन कप को एक शानदार प्रदर्शन होना चाहिए और एक अच्छे से प्रदर्शन होना चाहिए। लोगों का एंटरटेनमेंट के साथ साथ सब लोग को जुड़ने का जो थोड़ा बहुत और बोडोलैंड में बाकी है, 30-40 ईयर्स का एक कम्युनल एक थिंकिंग था। हमारे भाइयों के बीच में लड़ाई हुए थे, दंगा हुए थे, बहुत सारे नफरत बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये सारा नफरत को दूर करके जो प्यार है, जो हमारे भाईचारा है, जो ब्रदरहुड फीलिंग्स है, इसको ये डूरन कप के थ्रू ही हम लोग पूरे का पूरे हम लोग ख़त्म करें या इसको मतलब बदलाए कि ये ऐसा परिस्थिति बोडोलैंड में फिर ना हो। एक अच्छा माहौल हो, एक उम्मीद का एक माहौल हो, आशा दिशा भरोसा फिर लोगों के बीच में आ रहा है, उसको आगे लेके जाने का एक अच्छा एक परिस्थिति हो। मैं यही उम्मीद करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।